Yes, sir. So here comes first three questions, and you have 3 minutes for this. Your time starts now. 3 questions, 3 minutes. So over हो गया sir. Over हो गया है? Okay. Let us start with the first question. Hanji, who will read it? Adib. Revati, read the first one. Sorry, sir, I was mute. The inner self provides us with a touchstone to evaluate our interface in nature. There is hierarchy of consciousness. Stones, planets, fish, and human beings represent consecutively higher levels of consciousness. Okay. Yeah. Continue. Interface with nature, which leads to the growth of higher consciousness, is desirable. Okay. So what can be said about the D sentence? Sir, it should be the starting. Or ending? Yes, sir. Yeah. It should be the starting or ending. Ending sentence, right? Any other mandatory pair? Can you see any mandatory pair? See, Sir, D when and we are doing pj@cat, we have to type in the answers. Right? So when we see questions pj@of any other examination like SNAP or ZAT or IFT, right? So there what happens is there the questions are given with options. Now if I have four PJ, 4 sentence PJ versus a 5 sentence PJ, it is actually easier in a 5 sentence PJ if you are given options. Are you getting? Yes, sir. Because options will remain 4 only, no? Yes, sir. Are you understanding what I'm saying? See, if there are 4 PJs, 4 sentence PJ, then it means you can have 24 options. 4 options. And out of 24, he is giving you 4. Right? Yes, sir. Whereas when we have 5 sentence PJ, this guy has 120 options, and out of that it is giving you 4. And any option which is not given will eliminate so many, so many of the questions it will be eliminating. Yes, sir. Are you understanding it? Yes, sir. Yes, sir. Right. So first, when we are given options, don't get bored whether it is a 4 option or 5 option. It doesn't make any difference. Right? Yes, no? Yes, sir. तो दुखी नहीं होना कि 5 वाला आ गया. वैसे तो 5 वाला आएगा नहीं. अगर 5 वाला आता है, so it means yes, you are having a better choice. So don't get bogged down that you are getting 5 PJ thing. Now in this particular PJ, you see what are the mandatory pairs. Where is a mandatory pair? Mandatory pair is जो दो लोग इकट्ठे ही आएंगे. That helps you to eliminate options. Can you tell me mandatory pair? B A के बाद आएगा. B A के बाद का आएगा. Why? सर उसने पहले इनर सेल्फ प्रोवाइड टच स्टोन है, उसके बाद इसने हायरार्की ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की है बी में. So what do we mean by touchstone? The top quality. हाँ जी, touchstone. सर जैसे वो नहीं होता है टच स्टोन आईलेट्स वाले होते हैं जो. हाँ, फिर मतलब वो टॉप क्वालिटी हो गया touchstone. कुछ भी. touchstone बोलो क्या होता है? अच्छा, touchstone to evaluate. अब तो बता दो यार. Something with which we can which we can compare ourselves with. Standard. पारस पता है आपको क्या रहता है? पारस
प्योर सर। सर लोहे को सोना करने वाली मणि। लोहे को सोना करने वाली जो है, तो उसमें टच स्टोन रहता है। जज करो, तुक्का मारो, क्या हो सकता है टच स्टोन? सर जिससे मतलब गोल्ड की प्योरिटी का पता करते हैं। बिल्कुल सही है। यू हैव अब इसको इसके साथ कनेक्ट सर, करके थोड़ा- देखो, इसके साथ कनेक्ट सर- करके देखो, तो इवेल्युएट क्या जुड़ रहा है क्या? सर एक स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पे हम किसी चीज को हाँ, evaluate करें। टच स्टोन मीन्स टेस्टिंग अलॉयज, गोल्ड को टेस्ट करने के लिए कि ये सही है या नहीं, असली सोना है या नहीं है। समझ आ गया ना? आप ये लिंक नहीं पकड़ रहे, इसका मीनिंग मेरे को नहीं पता है ना। टच स्टोन इज टू इवेल्युएट, जो हमें बताता है। तो बेसिकली यार जो सोना होता है ना, उसको टच स्टोन नहीं कहते। ये कई जगह ना गलत लोग समझ लेते हैं टच स्टोन। टच स्टोन इज काइंड ऑफ ए पीस ऑफ सम alloy or maybe something which is used to judge whether this is gold or not. ठीक है? आप कभी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, जब आंटी जी अपना सोना बेचने जाती है सुनियार के पास, तो उसको रब करके देखता है किसी चीज के साथ, और फिर बोलता है सोनो तो खरो है बहन जी। हाँ बोलो। यस सर। एनीहाउ, सो यहां से हमारा मीनिंग क्लियर हुआ कि जो हमारी इनर सेल्फ है वो हमें टच स्टोन देती है, हमारा इंटरफेस इन नेचर। हम नेचर में क्या हो गया, हम नेचर के साथ क्या करिए? तू बच्चों को तो क्यों देख रही है? तू क्या करना है? हाँ, क्या कह रहे थे भाई? हम बोल रहे थे कि वो हमें बताता है। सो हियर इट सेज इनर सेल्फ इज मोर इंपॉर्टेंट। आर यू गेटिंग? बोलो। Yes, sir. Now here says here is a hierarchy of consciousness, right? Means your inner self, your then stone this higher level of consciousness. अभी ये दोनों मैंडेटरी पेयर हो गए बीसी। Yes, sir. बोलो भाई, hierarchy and higher level connected, consciousness Yes, sir. connected। तो यहाँ भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है। चालू है ये ऑप्शन देने वाला पूरा। Are you getting? Now says interface with the nature. Evaluate our interface in nature. Out of A and D, can you tell us which sentence will come earlier? सर डी। पहले कौन सा आएगा? D आएगा, A आएगा? डी सर। ए आएगा। बोलो। डी। ए आना चाहिए। ए आएगा, क्योंकि अब इसके साथ हम देखेंगे ग्रोथ ऑफ हायर कॉन्शियसनेस। Growth of higher consciousness. So this should come after this thing. Basically, D is connecting all the three sentences. समझ आया भाई? बोलो। यस सर। यहां उसने इंट्रोड्यूस किया हमारी इनर सेल्फ को और नेचर को, इंटरफेस ऑफ नेचर को। गॉट इट और नॉट? ठीक हो गया। फिर उसने इसको एक्सप्लेन किया, इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस को, और एंड में कर दिया कि इनर सेल्फ विद द नेचर, इंटरफेस विद द नेचर, विच लीड्स टू द हायर ग्रोथ ऑफ कॉन्शियसनेस इज डिजायरेबल। राइट? अब या तो ये स्टार्ट करके एबीसी लग सकते हैं। सो आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड बिटवीन एबीसी, ए एंड डी ऑप्शन। गॉट इट? ठीक हो गया? Yes, sir. यस सर। ठीक है। सो बट इफ वी bring D forward, then it doesn't make sense, which leads to growth of higher level of consciousness. And then this doesn't make sense. I cannot say all this after telling that we need a higher level of consciousness, right? Then this doesn't make any sense. Are you getting? इस सारी चीज का सेंस नहीं होता। तो सी के बाद ही डी आएगा, सी के बाद ही डी आएगा। तो माय आंसर शुड बी डी। Got it? बोलो भाई। यस सर। ये थोड़ा टफ था, थोड़ा चैलेंजिंग था, काफी लोगों ने गलत किया होगा ये, राइट? क्योंकि ये था ही गंदा वाला। सेकंड वन पढ़िए।
Senior management is usually overwhelmed by the complexity of budget setting. Okay, senior management is usually overwhelmed by the complexity of budget setting. So the main point here is complexity of Budget setting. They are rather bored by the budget process. So who are they? Senior management. Senior management. So what does it mean? सर बी ए के बाद बी आएगा सर. So B should come after A. Yes, sir. B should come after सर A. डी के बाद भी हो सकता है क्योंकि डी में भी है सीनियर मैनेजर. नहीं, अरे यार अभी D तो पढ़ा नहीं है ना, अभी ये तो पता लग गया हमें. अच्छा ठीक है सर. अब देखो दिस सब में A भी ही है. बोलो. Yes, sir. तो इससे दुखी नहीं होना कि यार मैंने ए बी फाइंड किया था और सोल्यूशन मेरे को ए बी बता रहे. इससे खुश हो जाना है कि योर लाइन ऑफ थॉट इज एक्यूरेट. ठीक है सर. आपका जो थिंकिंग है वो सही है. सही दिशा में जा रहा है. ठीक है. इट इज ए मिसकंसेप्शन दैट बजट इज सेट बाय सीनियर मैनेजमेंट. तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि हमारा जो सेंटेंस है इट इज ए मिसकंसेप्शन. जो ऊपर कहा गया है राइट, उसको उसने खारिज किया है इस चीज ने. राइट. नेक्स्ट. Senior managers jump at a chance to accept a budget analysis recommendation for budget changes. Now they are rather bored by the process and they jump at the chance to accept a budget analysis recommendation for the budget changes. पहले ओपनिंग सेट करनी पड़ेगी इसमें. It is a misconception that budget is set by the senior management is usually over. तो C जो आएगा, C should come before B. Sir, C introduce नहीं करेगा ये. इंट्रोड्यूस कर सकता है. C B से पहले आएगा. तो कहीं भी C B के बाद है वो गलत हो जाएगा. So this goes wrong. Right? C और D दोनों options. Yeah, this also goes out. Now the answer should be here. तो A B तो हमें पता ही है. Now what could be penultimate sentence of A? Senior management is usually overwhelmed by the complexity of budget setting. इसके पहले C आ सकता या A आ सकता है. Senior managers jump at once to accept. ये सीनियर मैनेजमेंट बोल रहा है और यहाँ पे सीनियर मैनेजर्स बोल रहा है. एक्सेप्ट द बजट. सर सी के बाद ए इसीलिए आना चाहिए क्योंकि सी पहले बोल रहा है ये मिसकंसेप्शन और फिर ए सच्चाई बता रहा है. यूजुअली बता रहा है. यूजुअली है ना. यस सर. तो सी ए बी डी शुड बी द आंसर. बी शुड बी द आंसर. ओके हो गया भाई. यस सर. चलिए नेक्स्ट वन पढ़ो बेटा. नेक्स्ट. Risk stemming from fluctuation in exchange rate loans hover constantly on the horizon of foreign investment. हाँ मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है रिस्की प्रपोजिशन है. यही बोल रहा है. Yes sir. हाँ. In view of higher risk, a firm contemplating foreign investment would naturally expect a higher rate of return. Okay, तो हमारा जो B है वो A के बाद आएगा क्योंकि यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऐसा होगा. ठीक है इनका. तो ये वाला बाहर हो गया, ये वाला भी बाहर हो गया. हाँ. A multinational company may be accused of profiteering even when it may simply be following the sound financial practice of asking a high rate of return commensurate with risks characterizing the project. हाँ तो B और C कनेक्टेड हो गया भाई. ठीक है ना. इसमें बोल रहा है कि भाई जब हम हायर रिस्क ले रहे हैं तो हम हायर रिटर्न भी चाहते हैं और इस चीज को कंटिन्यू किया इसने. मे बी एक्यूज्ड सी में. राइट. हाँ. In addition, foreign investment is subject to discriminatory treatment and selection control in various forms. पक्का मैंडेटरी पेयर हो गया ए और डी क्योंकि रिस्क से नुकसान हो रहा है ना. बोलो. और उसके बाद फिर ये नुकसान की बात कर रहा है तो ये ए और डी आ गया. ए और डी लिंक आ गया. ए डी बी सी फर्स्ट इज द आंसर. गॉट इट. So I would say this to be easy, this to be medium, and this to be difficult. Got it everyone? Sir, हाँ जी बेटा.
Sir, in first question, how can we connect A sentence and B sentence? And A and B. because here he talks about the inner self provides us with a touchstone to evaluate our interface in nature, and there is a hierarchy of consciousness, right? So rather than connecting A with B, we are more able to connect B with C, and then C with D. And really we are not able to connect A with B, not that much, because it is actually A plus B and C is giving A plus BC gives rise to D. This is the combination. A and B usually don't have a strong connect. Then in option D, how can we take A, B, C, D? Then we don't have any other option, no? Okay, sir. सर BCAD नहीं हो सकता इसमें? नहीं, देखो जो D है ना, ये this is more of a concluding statement, because here it says interface with the nature, right? Yes, sir. This leads to higher consciousness, right? So these two things should have been talked about before this sentence. Are you getting? Yes, sir. Here Why can't we take second option, BCAD? BCAD, yeah, that can also be there. But it is more in general about interface of nature, not about consciousness. If we talk about, no, the passage is not about consciousness as a whole. It is about interface in the nature. How do we evaluate our interface with the nature? Right? So it starts with the interface of the nature and then ends with the interface of nature. Otherwise, it will start with the consciousness and ends with the interface of nature. That will not be a good sentence. This is much preferred. ABCD is much preferred. It was a difficult one, I must say. Right? Chaliye, next 3 questions. Question number 6, 7 and 8. सर जूम कर दीजिए. You can answer. Sir, option D. D, sir. Option D, why? Sir, because 6 से पहले we should have D, because 6 says it tries to eliminate. Yeah. So it is the key. It tries to eliminate what? The theory. Yes, sir. Right? And it is supported. ये आधा अधूरा छोड़ दिया तो बहुत क्लियरली CD बन रहा है यहाँ से. CD बन गया सर. तो CD इसी में है या इसमें है, तो ये दोनों बाहर हो गए. इसमें भी है, एक ही बाहर हुआ. Now ये D लास्ट में है तो ये भी बाहर हो गया. Now it is A or B or B or A. Here you see, here is Large corporation. And here says small corporations. Small corporations, right? So it should be BA, right? Because Yes, free market और उस वाली चीज को A, B capture कर रहा है, right? Promoting leaders. Promoting leaders. And these are the leaders, right? Yes, sir. Right. So it was easy one. BACD is the answer. Okay. 7th one. D. Sir, A option. A option. Why? So option C. Anything being mentioned twice, that will act as your anything. Physical deficits. Fiscal deficit. Here says that fiscal deficit is uncontrollable. Here says fiscal deficit has deteriorated, right?
So among B and F, which one should come first? Sir, B. Huh? Sir, B. एफ आएगा पहले सर, F आएगा ना पहले यार, इंट्रोडक्शन होगी उसके बारे में सर। ठीक है ना, उसके बाद ये सारी कहानी आएगी. सो B पहले आएगा F से, B पहले आएगा, F पहले आएगा B से, F पहले आ रहा है B से, F पहले आ रहा है B से, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, आंसर आ गया. ठीक है, क्योंकि वैसे ऑप्शन बनाने जाओगे तो रात हो जाएगी आपको. तो सर ये Yes, ऐसे sir. करके देख लेंगे, ठीक भाई तेरी क्लास नहीं चल रही है? हाँ जी, तुम्हें सर पैसेज का सेंस नहीं बन रहा. हाँ जी पढ़ो थोड़ा सा, 8th वन पढ़िए. Reporting is all about back-breaking work, long and very irregular hours and work pressure. Most reporters join the profession with a dream of changing the world. हाँ, रिपोर्टिंग ये कौन सी हो गई जो ये न्यूज चैनल रिपोर्टर्स आ रहा है, ठीक है, जर्नलिज्म आ गया. हाँ, The truth is that ये क्या है, क्या असलियत क्या है उसकी, ठीक है. लॉन्ग इरेगुलर वर्क प्रेशर होता है, राइट. बहुत लोग ज्वाइन करते हैं किसके साथ, कि दुनिया बदल देंगे. हाँ, जर्नलिज्म हैज the truth is that reporters are usually passionate about their work and get their kicks from almost, sorry, ये D option है, right? Almost non-stop excitement and of course seeing their names in print. यहाँ कुछ टाइपिंग एरर है. Okay, sir. And seeing their names in the print. चलो, kicks from, almost non-stop. Sir, ये पूरा sentence है sir. हाँ, kicks from D कुछ और है, यहाँ पे कुछ आना चाहिए. Kicks from comma आएगा. चलो, and of course seeing the names in the print. हाँ. A few years later may seem to resign to the fact that reporting is unlikely to do that. Adding to that fact, threat journalists, sir, I guess यहाँ पे the world over complains of being poorly paid in comparison to other professionals. Fact threat journalist. ये चेक करता हूँ मैं. And you wonder why. ये चेक करते हैं इसका. 7th में सर सी का है, ये रहा जो दैट है ना, दैट, राइट. और ये यहाँ पे लिखा है कि रिपोर्ट प्रोफेशन ड्रीम ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड. तो बी और डी तो लिंक पक्का पड़ा है कि कुछ सालों बाद आपको लगता है, आप मतलब मान लेते हैं कि रिपोर्टिंग से कुछ नहीं होने वाला है. Yes sir. ठीक है ना, मतलब जब शुरुआत करते हैं तब तो आप कहते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे, फिर ये कहते हैं कि भी चलो एक टीवी चैनल तो बदल नहीं सकते हैं. ऐसे एक बड़े अच्छे शायर ने कहा था, शायर नहीं ऐसे बंदे ने क्या कहा था पता है? बोलो. उसने कहा था कि भाई देखो, जो कुछ करना है अभी कर लो, ठीक है. देश के युवाओं से कहा गया था ये, शादी के बाद तुम एक टीवी का चैनल चेंज नहीं कर सकते तो देश कहां से बदलोगे. सर ये E ऑप्शन शायद ऐसे होगा, adding to the fact that journalists all over the world complain of being poorly paid in comparison to other professionals. हाँ 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 हाँ, adding to the fact that आएगा. Journalists all over the world complain of being poorly paid. Adding to the fact that journalists over the world and you know, okay. तो हमारा बी और डी तो लिंक आ गया ना सीधा. Yes sir. ये बी डी सब में दे रखा है इसने. चलो खैर, एक ऑप्शन तो गई बाहर. Yes sir. और
डू दैट। इसके बाद ये हो सकता है रिपोर्टिंग क्या है, BDA आ जाएगा, और एडिंग टू दैट ये तो एंड में आना चाहिए। द ट्रूथ इज दैट, द ट्रूथ इज दैट, आना चाहिए। A के बाद E, like the work pressure and then adding to that fact. देखिए जहां पे ये लिखा है ना, द ट्रूथ इज दैट, ये आंसर है इस क्वेश्चन का, एंड यू वंडर व्हाई, राइट। और इसके पीछे इसकी कहानी आएगी कि भाई वो उनकी सैलरी कम है, एंड यू वंडर व्हाई, क्योंकि ट्रूथ इज दैट दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क एंड द कैट किक्स फ्रॉम देयर, जो भी है, किक्स फ्रॉम ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप एक्साइटमेंट, kicks from the almost सर ए और ई भी बन रहे हैं, ए और ई भी बन रहे हैं। हाँ, एडिंग टू फैक्ट दैट, उनका मतलब एक तो Yes, उनका sir. बैक ब्रेकिंग वर्क होता है और फिर उनको पैसा भी नहीं मिलता है। ए और Yes, ई sir. भी बन जाएगा, ए और तो ई सी बन ऑप्शन गया। आ गया। बहुत सारे Yes. लिंक पड़े हैं इसके अंदर, सो सी इज द आंसर। चलिए, can you see question number 9 and 10? Yes, sir. Yeah, 2 questions, 3 minutes. Oil spills that contaminate the soil around petrol stations could soon be cleaned up more easily using sound waves. Okay, Researchers have been this line is in favor of sound waves, that sound waves can do this, right? Yes, sir. Yeah. Researchers have been trying out sound waves to break up the droplets containing these heavier fractions so they can be washed out. Okay, 1 minute. Now can we read the last one? Sixth point? Initial results show that this may provide an effective solution to the problem. Now, this techniques works many times, right? You read the first sentence, you read the last sentence, especially when first and last is given to you, right? So there you try to think what could be the story in between. So here we say it talks about oil spilling and solution as a sound waves. And in the last it also talks about this may provide effective solution to the problem. So my passage has to essentially concentrate on these things only. Yes, now sir. let us read that and try to see if we can get the answer. The longer, heavier hydrocarbons often stay trapped in large droplets between the grains of the soil. Techniques that clean the soil in situ tend to remove only the shorter hydrocarbon chains, which are more soluble in groundwater. So this is telling us the inability of current system, right? Yes, sir. This is also inability of current system, isn't it? Sir, and D is the current system. The current system. So D, C, D should be the link, right? Yes, sir. Ah. Sir, and this may be A. These heavier fractions, right? Yes, sir. So what are these heavier fractions? The hydrocarbons. Heavier hydrocarbons. So B के बाद A आएगा. B के बाद A आएगा. So this goes out, and it should start with D. So D के बाद A. This is the answer. Got it? Yes, sir. Yes, sir. चलिए. First one. The World Population Day has come and gone, accompanied by the usual hysteria and Malthusian prophecies, 1 billion strong and so little to go around. So Malthusian prophecies
ये बोल रहा है कि लोग sarcastically is talking about that World Population Day. We are like coming to talking about World Population Day. Next, sixth one. True. But for every Indian who performs below par, there is another who makes up. It is on the strength of India's millions that we lay claim to being a great world power in the making. तो कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन को लेके कंसर्न, एंड ही इज टेलिंग, he is picking up the one instance where people have celebrated World Population Day. So this can be, just an article written next day to the World Population Day, right? Yes, sir. जैसे कहीं भी न्यूज़पेपर में देखेंगे ना, अभी बोलेंगे एक और न्यू ईयर आ गया, पीपल नाउ टेक रेजोल्यूशन, क्या क्या करेंगे लोग न्यू ईयर पे, राइट? कुछ लोग छुट्टी मना के आएंगे, दिस न्यू ईयर मे नॉट बी एज द लास्ट न्यू ईयर, राइट? This will be different. People will think of, will thankfully end 2020. People may presume 2020 end as the end of Corona also. ऐसी ऐसी कुछ भी कहानी हो सकती है नहीं हो सकती है? Yes, sir. सेम वे, सो ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में बोला है, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे से लिंक्ड इसके अंदर बातें करेगा. लेट अस सी. Option A. True, many Indians are barred by circumstances of birth and socio-economic position from realizing their full potential. ठीक है, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि पॉपुलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपना पूरा पोटेंशियल नहीं मिलता क्योंकि वो गरीब परिवार में, सोशियो इकोनॉमिक उनका ठीक नहीं होता. ठीक है, हाँ. Yet the lament about the lack of resources is patently specious. लैक ऑफ रिसोर्सेज को लेके जो हमारा मुद्दा है उसके बारे में बात किया गया. हाँ, आगे. Fact is, India has abundant resources. It is the skewed distribution system which has caused inequalities. So B and C seems to be connected in a one way or other, right? Sir, and C and 6. Let us see. D. As our population has grown, so has our productivity, and today we are in a position to export food to other countries. So यहाँ पे हमने पॉपुलेशन का बात किया है कि जैसे हमारा पॉपुलेशन ग्रो किया है उसी तरीके से हमारा वी आर इन ए पोजीशन टू एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज. B and D. B and D. Yes, sir. And B should be counting. B और D लिंक हो गया पक्का, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की बात की गई है और यहाँ पे वो बोल रहा है कि भाई सो एज आर प्रोडक्टिविटी, तो ये B और D हो गया. B is the starting. is इसके बाद C आ गया, B D C. ये कहाँ लगाएंगे अब? C के बाद, क्योंकि B starting होना चाहिए. It's saying a billion strong and so little to go around. Yet the lament about the lack of resources is patently spacious. बिल्कुल सही है. Sir, but वो lack of resources in India, right? Or in the world? नहीं, ये तो obviously we are talking about India because it's a billion strong. It's from here we can make it out we are talking about India only. India. हाँ, क्योंकि बी में उसने उसको खारिज किया, डी में एक्सप्लेनेशन दिया, फिर बी में फिर आ गया वो. ठीक है, ठीक है भाई. BDCA third should be the answer, but this was slightly on a medium to moderate to tough side, not an easy one. This one was easy. It was an easy. Chalo. So we'll do 2 questions more before we go for our sentence correction questions. Chalo, one more. 2 minutes.
read it out. Anybody else? I think whiskey felt good after a week when he was allowed to drink nothing but champagne by his host in India. Aha! But then they had a reason to celebrate. Right? सर बट फिर वो साइमन को एकदम लास्ट में इंट्रोड्यूस करेगा फिर. देखते हैं बी और डी आ गया ना ये. यस सर, वो आपकी वो ऑप्शन 4 आ जाएगी आपकी. ग्लास ऑफ सिंगल मॉल्ट. अब इसके बाद विस्की पे आ गया, वो विस्की का गिलास आ गया, तो बी ही बनेगा स्टार्टिंग. राइट? अदरवाइज अगर मैं ए से स्टार्ट करता हूं तो ए में विस्की खत्म हो गई. समझ आया? फर्क था ना कैसे लॉजिक में. अरे यार वो कह रहा है कि आई न्यू वी वर राइट, थॉट टू हिमसेल्फ एज ए स्टीवर्ड, बॉट हिम अ ग्लास ऑफ, उसको एक वो लेके आया, सिंगल मॉल्ट का ग्लास लेके आया उसके पास. ठीक है ना? मतलब ये तो सेंटेंस है ना. सी से स्टार्ट कर सकते हैं सर, सी से. नहीं, रिफिल तो बाद में आएगा ना भाई. रिफिल तो बाद में आएगा ना. वो बंदा कह रहा है भी मैं ठीक था. कौन कह रहा है मैं ठीक था? नील सिमोन. ठीक है, बोलो. यस सर. क्यों कह रहा है? क्योंकि हिमसेल्फ सर वो सोच रहा था. हाँ, सोच रहा था अपने आप के बारे में. थॉट, जैसे ही वो एक ग्लास लेके आया. ठीक है. यस सर. स्पेशल विस्की है, तो फिर विस्की पीते हुए उसको अच्छी लग रही थी विस्की, क्योंकि उसने 1 साल के बाद पिया था विस्की को, मतलब 1 हफ्ते के बाद विस्की पी थी. ठीक है. अब 1 हफ्ते बाद क्यों विस्की पी थी? क्योंकि उनके जो कलीग्स हैं उनके रीजन था सेलिब्रेट करने का. राइट? बोलो, यहां तक तो कनेक्ट हो गया ना? यस सर. अब ये देखो, he had been at S&R less than 8 months. Who is he? साइमन. ये ए और ई आ गया. यहां पे साइमन को इंट्रोड्यूस किया गया है. राइट? सो इसका सही वाला सी के बाद अगेन सी. साइमन सिग्नल टू द स्टीवर्ड दैट ही वुड लाइक अ रिफिल. ही मतलब उसने उससे एक तो ले लिया और उसके बाद बोला कि एक और ले आना भैया. ठीक है. सर इसमें देखिए सी वाले में तो इसमें अ वीक का बात है ना, एंड थॉट अबाउट अ वीक दैट हैड बीन. अब इसके बारे में उसकी कहानी आएगी कि वीक कैसा था वो. नहीं तो फिर उसको कनेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि द गारमेंट रिटेलर हैड अराइव्ड इन इंडिया एग्जैक्टली 7 days बैक विद मिक्स्ड फीलिंग, सो ही वाज थिंकिंग ऑफ 7 days दैट ही. ये रहा, ये इसके बाद ये आ जाएगा, सी के बाद ये आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि दारू वाला प्रोग्राम पहले खत्म कर लो ना, फिर बाकी बाद में करेंगे. बोलो भाई. हाँ जी सर. यस सर. पीने पिलाने वाला काम खत्म कर लिया, फिर ये बता रहा है उसके बारे में, ये भी बता रहा है उसके बारे में, भैया कैसा है, क्या करता है वो. राइट? जो दोनों हैं ए और ई आर कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट हिज अचीवमेंट. नो, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द विस्की एट ऑल. बोलो. और वो इसीलिए रीजन बन गया सेलिब्रेट के लिए, इसीलिए वो डी इसको भी भेज दिया, इसको भी भेज दिया बाहर. क्या नाम है, ये भी घर चला गया, ऑर्डर लेके चला गया, वो दोबारा नहीं आ रहा, वो अपने ख्यालों में है. वो ये सारी कहानी आ गई है. ठीक है ना? ही हैड बीन, यहां से भी पकड़ो, ही हैड बीन हायर्ड, क्योंकि वो पास्ट के बारे में सोच रहा है. फेल्ट गुड. बट ही न्यू his India trip was one of those things that could make the break his career. है ना? I knew I was right. ये स्टार्टिंग यहां से देखो. बोलो. यस सर. ये तो बेसिकली वो है कि कोई बंदा कुछ डिसीजन लेता है यार, ठीक है, तो जब तक वो सफल नहीं होता तब तक परेशान रहता है, पर जिस दिन उसकी वाह वाह हो जाती है उस दिन फिर बैठ के दारू पैक लगाता है और सोचता है कि वाह, आई हैव डन ग्रेट.
हाँ, ठीक हो गया। बाकी जो पीने वाले हैं वो ज्यादा समझेंगे कि बंदा शैंपेन वैम्पेन पी के ज्यादा नशे में नहीं आता, उसमें तो सेलिब्रेशन ही होता है। असली थॉट प्रोसेस तो उसके बाद ही शुरू होता है, जब 2 गिलास विस्की के ले ले, है ना। ऑप्शन क्या है सर इसमें ऑप्शन क्या होगा? आ जाएगा क्लियर राइट्स में, तो बी और डी में तो कोई चिंता ही नहीं है ना, तो 2 ही ऑप्शन रहेगी आपके पास, ये गया बाहर। हाँ, तो सिग्नल बाद में करेगा ना, तो ये बाद में आएगा। इसको बहुत कुछ बन सकता है, बट हमारा स्नैप के अकॉर्डिंगली इतना टाइम नहीं होता। एक पकड़ा है, उसके बेस पे लगाओ आंसर और आगे चलो। Got it? Snap is all about making quick sentence correction. दिखेंगे। जी, first question. Can you see? Everyone can see that? Yes, sir. Yes, sir. 5 questions. Yeah, do that. Sir, time. Time 3 minutes. Okay, 4 minutes. Karan. Yes, sir. हाँ जी। So he was sleeping in his room when a thief entered into his house and took away a lot of things. हाँ, मेरे हिसाब से सर entered his house होगा। हाँ, entered his house. Why not Yes, sir. into? सर मतलब सर सर वो एंटर कर रहा है तो इनटू अंदर ही। हाँ, अंदर ही एंटर तो जाएगा। अंदर ही करेगा, बाहर थोड़ी ना निकलेगा। हाँ, तो Yes, sir. इट इज नॉट रिक्वायर्ड। एंटर के साथ इनटू इज नॉट रिक्वायर्ड। यूजुअली हम इसको यूज कर लेते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं होती है। राइट, Yes, sir. वेरी Yes. गुड। ओके, प्रांशु, क्वेश्चन नंबर 2। Yes, sir. In her concluding speech, she said almost nothing worth listening to. हाँ, बोलो। She said almost nothing, sir. It seems to me this one. Almost nothing. ऑलमोस्ट नथिंग तो ठीक है। End wala. She said. नहीं, ये तो ओके है। ओके, लेट मी आस्क somebody else. अदीब। सर हेलो। हाँ सर एक बार स्क्रीन रिफ्रेश करके गायब हो गया। हाँ, अदीब भैया। यस सर। सर थर्ड ऑप्शन। बाय। सर वर्थ की जगह पे बट। हाँ, करिश्मा। आई थिंक नो एरर होगा। नो एरर। अभिषेक, अमर। So इसमें in her concluding speech she said almost nothing worth listening. हाँ, हाँ तो वही होगा लास्ट में। कंक्लूडेड होगा क्या? लिसनिंग में टू और ऑलमोस्ट वर्थ लिसनिंग, दैट्स इट। यस सर। राइट, वर्थ लिसनिंग टू नहीं, वर्थ लिसनिंग, खत्म। समझ आया? वर्थ लिसनिंग ऑफ भी हो सकता है क्या सर? नहीं, वर्थ लिसनिंग खत्म हो गया, बस काम बन गया ना, वर्थ लिसनिंग। हाँ यस सर। हाँ, नेक्स्ट।
सर 1 में आएगा। अर्नब डबलिश हाँ जी सर ना थर्ड का सर हाँ ए ऑप्शन सर। वाई सर इट वाज अपेरेंट फॉर, मतलब सही नहीं लग रहा था। क्या लगेगा? और अपेरेंट, अपेरेंट के साथ फॉर नहीं लगता, अपेरेंट टू लगेगा यहाँ पे। इट वाज अपेरेंट टू एवरीवन प्रेजेंट दैट, राइट? इट वाज अपेरेंट टू मी, राइट? अपेरेंट फॉर नहीं यूज होता है हमारे पास। हाँ, नेक्स्ट वन वाला, नेक्स्ट वन इज योर रेवती। और इसमें मुझे 1 में लग रहा है। हाँ, he proposed to me। हाँ, proposed to me, he proposed to me आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया भाई? यस सर। सर ये डायरेक्ट सेंटेंस भी हो सकता है, he proposed that we should go to the disco। हाँ, फिर टू मी नहीं आएगा, ही प्रपोज्ड सिंपल आ गया, ही प्रपोज्ड आ जाएगा। बट उसने मेरे को किया, ही प्रपोज्ड मी, तो मतलब उसने प्रपोज किया भाई मेरे को, है वो वाला प्रपोज हो गया, ठीक है? हाँ, प्रपोज टू मी। या नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अमन अग्रवाल। सर 4। वाई? सर अमोंग पहले आ गया, फिर तो 2 का जरूरत नहीं है। सर वो अमोंग की जगह पे बिटवीन आएगा। बिटवीन आएगा, वेरी गुड वेरी गुड। क्योंकि बेटा जी जो हमारा अमोंग है वो 2 से ज्यादा के लिए लगता है, ठीक है? अब या तो हम 2 को हटा दें कि भाई 2 गलत है, बट है तो 2 ग्रुप है तो 2 ही ग्रुप रहेंगे। हम अमंग के चक्कर में ग्रुप थोड़ी बढ़ा देंगे। तो इट इज इंग्लिश यूजेज एरर, नो, इट इज नॉट द एरर इन द मिस रिपोर्टिंग कि 3 लोग थे और उन्होंने 2 ही बताए, वो एरर नहीं है ना। यस सर। एरर क्या है कि हमें अमंग लगाना चाहिए था, अमंग नहीं लगाना चाहिए था, बटवीन लगाना चाहिए था। तो अमंग लगता है किसके लिए? मोर देन 2। हाँ, अमंग इज मोर देन 2 एंड बाकी के लिए बटवीन, ठीक है? यस सर। दिस इज दीज, ये आज हम करेंगे ऐसे एरर करेंगे जो नॉर्मली एग्जाम में आ जाते हैं, राइट? और ये आपको मतलब ये स्टैंडर्ड एरर्स हैं, है ना? इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं लगता है, ये कॉमन इंग्लिश एरर्स हैं जो हम करते हैं और यही आते हैं ऑलमोस्ट एग्जाम्स के अंदर। एनी हाउ 10 मोर 5 मोर फटाफट। अनुभव जायसवाल फर्स्ट वन। अनुभव जायसवाल फर्स्ट वन। Sir, a team complained the manager against the factor and about the poor facilities. Poor facilities के बारे में क्या बोले? Sir, and about the poor facilities. About the poor facilities, and yes, absolutely right, because against the captain and the poor facilities नहीं आएगा, and क्योंकि उसके आगे भी against लगा है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ लगना चाहिए था, right? About the poor facilities provided in the hotel. Okay, next, yesterday, next कौन बताएगा हमें? हमें बताएंगे प्रभाकर सिंह। Sir, yesterday I met a man who was blind with the right eye. Sir, blind with the right eye की जगह blind in the right eye. हाँ, blind in the right eye आएगा। एक्चुअली blind के साथ ना बड़ा लोचा है, blind of an eye लगेगा, या तो blind of an eye, right? या blind with both the eyes लिखा जाएगा। Yes. सर ये होता है blind from the right लगता है, ठीक है? या अगर हम कहेंगे भाई ब्लाइंड इन द लेफ्ट आई और इन द राइट आई, राइट? ये बड़ा मार्क कर लीजिए क्योंकि दिस इज यूजुअली स्ट्रेट वे आंसर। सर ब्लाइंड बाय भी गलत है क्या? ब्लाइंड ऑफ एन आई हम यूज करते हैं हम। सर अगर फ्रॉम लगाएं फ्रॉम द राइट आई
लगाने को तो कुछ मर्जी कर लो यार, यूजेज है ये जो कॉमनली यूज किया जा सकता है। समझने को तो समझ ही सकते हो कि भी एक आंख से है, राइट? ठीक है है तो आंख में ना, तो सर इन होना चाहिए। तो जब हम कन्वर्ट करके लगाते हैं, सर इतना आएगा बाप के हिसाब से? हैं जी, इतना आएगा आप इन आएगा, ये यूजेज है इसका, ठीक है हाउ सर। इट इज बीइंग यूज्ड, राइट? इसके कोई मतलब ये नहीं है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है, मतलब इसमें हम हार्ड एंड फास्ट नहीं बना सकते, यूज ये करते हैं हम, ठीक है? सर हाँ, तो फर्स्ट में जो अगेंस्ट है ना सर, ये थोड़ा सुपरफ्लुअस हो सकता है, क्योंकि कंप्लेंट तो किसी के अगेंस्ट ही होती है। द टीम कंप्लेन द मैनेजर अबाउट द कैप्टन एंड द कैप्टन नहीं होगा, किसी जब इंडिविजुअल के अगेंस्ट, मतलब दो चीजें रहती है बेटा, जब हम किसी ह्यूमन बीइंग के अगेंस्ट कंप्लेंट करेंगे तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट होगा, और जब हम किसी चीज के बारे में कंप्लेंट करेंगे तो अबाउट होगा। ठीक हो गया? हाँ, ओके। 8th वन बोलो, बोलो भाई। सर मैं यही ट्राई 8 का ऑप्शन में मिस्टेक है शायद। पढ़ो तो। द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे वो नहीं है ना, यस सर। यहाँ पे इसको 2 लगा देते हैं। सर प्रिंसिपल ही में ही मिस्टेक है। हाँ, पढ़ो। मिस्टेक है सर। कौन से वाला प्रिंसिपल आएगा? एली वाला। हाँ, एली वाला क्यों आएगा? सर ये स्कूल और फेयरवेल वाला बात हो रहा है। हाँ, तो एक प्रिंसिपल PAL वाला होता है, ठीक है? बोलो। पर ये प्रिंसिपल वाला सही है, एली है। मतलब वो है, मतलब जो एली वाला होता है वो होता है कि कोई किसी थ्योरम थ्योरी वाला का। प्रिंसिपल हाँ है। सर, वो होता है ना? यस सर। एल वाला जो है वो AL वाला तो यही होता है। सर स्कूल के यही है सर। प्रिंसिपल PLE मतलब जो वाला आपका फंडामेंटल। 10 स्वीट्स से स्वीट्स आएगा ना सर सिर्फ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। यहाँ पे PAL वाला ठीक है, ठीक है? सो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? बोलो। दोस्तों को क्या बोलते हैं? पल नहीं बोलते, पल, पाल, हाँ? पैल बोलते हैं ना, फ्रेंड के लिए यूज करते हैं ना पैल। यस सर। हाँ, तो वहां से याद कर सकते हैं पैल, पैल, ठीक है? ये हमने ऐसे स्कूल में याद किया था। चलो, द स्वीट अमंग आवर फ्रेंड्स, ये अमंगस्ट क्यों आएगा, अमंग क्यों नहीं आएगा? अमंग होता है बच्चों के बीच में से, राइट? उनके बीच, राइट? और अमंगस्ट होता है कि उनमें बांट देना। बोलो, समझ आया? बोलो भाई, समझ में आया या नहीं आया ये फंडा, अमंग और अमंगस्ट वाला? यस सर। सर मतलब अमंगस्ट मतलब जो हमारे ही, मतलब, और अमंग मतलब दूसरे, इस वे में। कैसे कैसे कैसे? सर अमंग मतलब दूसरे लोगों को बांटना, और अमंगस्ट मतलब हमारे अपनों में ही, मतलब सम वे एसोसिएशन। अगर प्रिंसिपल बोलते तो अमंग आया। अमंग हम करते हैं कि जब वो बंदा इंक्लूडेड होता है। सर नहीं होता अमंग के टाइम। यस सर। हाँ, सो दैट इज अमंग। और जब हम उसको एक्सक्लूड कर देते हैं तो अमंगस्ट आ जाएगा वो। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? नेक्स्ट अनुभव, मनीष गर्ग। एज पर इनविटेशन कार्ड। हाँ ना, ये मेरे को लगता है तुम सही करोगे बिल्कुल। हाँ, रहीम मैरिज विद सायरा ऑन मंडे 13 दिसंबर आएगा सर। ऑन मंडे नहीं, ऑन 13 दिसंबर, मंडे भी तो ठीक है। सर
अरे स्टैंडर्ड एरर है इसमें तो यार। सर विद नहीं विद आएगा। नहीं आएगा। विद की जगह टू आएगा। सायरा मैरिज विद नहीं होता, मैरिज है खाली, खत्म। मैं उधर देख गया, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट, ये थोड़ा टफ है। रेवती। सर ये इसमें जो फोर्थ वाला है पुअर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग नहीं आएगा सर। क्या आएगा फिर? सर थर्ड होगा ना इसमें, तो फॉर इट्स नहीं होगा, फॉर इट्स पुअर परफॉर्मेंस। नहीं, कहानी नहीं समझे यार आप। सेंटेंस एडमिट नहीं आएगा, एडमिट नहीं आएगा। द डिबैकल ऑफ द कांग्रेस पार्टी एडमिट्स टू आता है। नो अदर एक्सप्लेनेशन नो एक्सप्लेनेशन अदर देन ऑफ इट्स परफॉर्मेंस आना चाहिए, या तो यहाँ पे ऑफ लगेगा, ये एडमिट के साथ टू आता है। एडमिट्स, या यहाँ लगेगा, या इसको एडमिट के साथ ही लगा दो। सेम ही सर देन टू आ सकता है। एडमिट्स ऑफ, या तो यहाँ एडमिट्स ऑफ लग जाएगा या वहां लग जाएगा। सर इसमें फॉर नहीं आएगा, डैन की जगह फॉर नहीं आ सकता। ये कांग्रेस पार्टी कोई भी और एक्सप्लेनेशन मानने के लिए तैयार नहीं है, राइट? नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स। सर दैन मतलब ये अदर दैन साथ में नहीं आता हमेशा। नो अदर नो एक्सप्लेनेशन अदर दैन। नो अदर एक्सप्लेनेशन देन, हाँ वैसे सेंटेंस तो वैसे ज्यादा बेटर बनेगा। नो एक्सप्लेनेशन अदर देन, नो एक्सप्लेनेशन अदर देन, ऐसा ज्यादा बढ़िया बनेगा। एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन अदर देन, ऐसा फ्रेजिंग अच्छा बनेगा सेंटेंस का ना। पुअर परफॉर्मेंस। सर एडमिट्स के बाद ऑफ लगना जरूरी है। सर एडमिट्स नो एक्सप्लेनेशन अदर देन। सर एडमिट्स के बाद ऑफ होगा। एडमिट्स के बाद ऑफ होगा। ऑफ लगता है। एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स पुअर परफॉर्मेंस। डन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप। तो वैसे भी तो सेंटेंस फ्रेज होता ही है, अदर देन जरूरी नहीं होता। बिना ऑफ के नहीं सर, अदर देन जरूरी नहीं है साथ में आए। हाँ वैसे भी हो जाता है, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे ज्यादा बेटर हो जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। एडमिट्स ऑफ नो अदर एक्सप्लेनेशन देन इट्स, यूज करते हैं हम इसको, घुमाते हैं हम इसको। तो ये उसको ज्यादा अच्छे समझा रहा है कि he is giving that there is only that explanation. चले जी 11th to 15th। The first one, Aman Agarwal, the society does not hold itself responsible for the loss or damage of any item. हाँ, या loss of or damage to any item. Yes sir. Of दोनों में कॉमन लग जाएगा या loss of और damage to? Yes sir. 3 option. Very good. ठीक है जी। अर्नब भैया बताइए 12th one। That in spite of being very busy at project work, he saves time for the relatives. For the relatives, right. 13th one, Prabhakar Singh. Some persons get promotions even if they are not worthy for them. Worthy
Worthy of them. Of them, very good. 14th. सर इधर some persons की जगह some people भी हो सकता था क्या? Some persons, some people get promotions. Doesn't seem right. Some people भी हो सकता था, but persons भी तो ठीक है ना. हमने तो गलती निकालना है ना. हाँ मतलब जो अल्टरनेट यूजेस तो हो सकता है, बट जो गलत है वो ढूंढना है हमने. नेक्स्ट. So get promotion नहीं हो सकता क्या? S क्यों लगेगा? Promotions में. Persons get promotions. Some persons get. हो सकता है क्योंकि सब पहले पर्सन्स वहाँ पे कर दिया है तो फिर प्रमोशन ही तो होगा. वो तो गेट के साथ लगेगा ना, प्रमोशन थोड़ी वर्ब है. हाँ यस ये तो. गेट्स थोड़ी ना लिखा है उसने. वर्ब तो गेट है ना भाई. तो मतलब प्रमोशन सही होगा ना. अरे प्लूरल ले लो, सिंगुलर ले लो, उससे क्या. अगर गेट्स होता फिर गलत हो जाता. हाँ फिर पर्सन आना चाहिए था. ठीक है ना. यस फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बन जाता. हाँ चलो नेक्स्ट. नहीं आएगा. ऑन नहीं आएगा. अटैक ऑन नहीं आएगा. अटैक करेगा. अटैक ऑफ नहीं. अटैक का ऑन लगाने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू पुट ऑन दिस. राइट जी. नेक्स्ट. Immoral. डिक्लाइन इन हर. गंदा सा दिया हुआ है इसका यार. हाँ ये डिक्लाइन है. कहते द डिक्लाइन नहीं आएगा, खाली डिक्लाइन आएगा. राइट मेरे को लग रहा था नो एरर है, but then it was given error. Given was use decline. चलो 16 to 20. बट ठीक है सर आप. हाँ फटाफट चलो. पहले वाला इजी. ऑर्डर्ड. आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. We can get rid of for. Then there are some animals that can live both in water and on land. During his tour to South, he visited not only Chennai but also Karnataka. Two की जरूरत नहीं. Mr. President Kalam is much sought after by school students and is invited to many functions. Right? Invited to many functions. Sir, after by मतलब क्या? Sought after. Sought after. Sought after इकट्ठा यूज किया गया है. ढूंढते फिरते. और भी यूज हो सकता है वैसे. Invited for many functions. Invited for many function and invited to many function में थोड़ा सा फर्क होता है. So it's like when you are, I think, invited as a chief guest and you are just invited, उसमें फर्क आ जाता है. Okay. मतलब means invited to और लेकिन तुम किसी फंक्शन के लिए वैसे इनवाइट करोगे तो वो आ जाएगा. ठीक है. जैसे आप इनवाइटेड, आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए बुलाया जाता है, देन इट इज एन इनवाइटेड टू ए स्पेसिफिक इवेंट. ओके यस. ठीक है. मतलब अगर तुम यू आर इनवाइटेड फॉर पर्टिकुलर सेरेमनी, राइट, इनवाइटेड टू फंक्शन. ठीक है. फंक्शन इन जनरल हो गया ऐसा. ठीक है. आगे हिज मदर इज नॉट वेल बट ही डज नॉट लुक आफ्टर. देख रेख करना. लुक फॉर होता है ढूंढना किसी को. ठीक है. सो गाइज, टुडेज क्लास वाज जस्ट